أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ. فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. ترجمہ سورہ بقرہ 22واں رکوع. کچھ اصل نیکی یہ نہیں کہ منہ مشرق پورب یا مغرب پشچم کی طرف کرو. ہاں اصل نیکی یہ کہ ایمان لائے اللہ اور قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبر پر اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے رشتہ داروں اور اناتھوں اور دردروں اور راہگیر اور سائلوں یاچکوں کو اور گردن چھڑانے میں اور نماز قائم رکھے اور زکوٰۃ دے اور اپنا کہا پورا کرنے والے جب عہد کریں اور صبر والے مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت یہی ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی اور یہی پرہیزگار ہیں. اے ایمان والو تم پر فرض ہے کہ جو ناحق مارے جائیں ان کے خون کا بدلہ لو. آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام اور عورت کے بدلے عورت. تو جس کے لیے اس کے بھائی کی طرف سے کچھ معافی ہوئی تو بھلائی سے تقاضا ہو اور اچھی طرح ادا. یہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارا بوجھ ہلکا کرنا ہے اور تم پر رحمت. تو اس کے بعد جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے اور خون کا بدلہ لینے میں تمہاری زندگی ہے. اے عقل مندو کہ تم کہیں بچو. تم پر فرض ہوا کہ جب تم میں کسی کو موت آئے اگر کچھ مال چھوڑے وصیت کر جائے اپنے ماں باپ اور قریب کے رشتہ داروں کے لیے دستور کے انوسار. یہ واجب ہے پرہیزگاروں پر.
तो जो वसीयत को सुन सुनकर बदल दे, उसका गुनाह उन्हीं बदलने वालों पर है। बेशक अल्लाह सुनता जानता है। फिर जिसे डर हुआ कि वसीयत करने वाले ने कुछ बेइंसाफी या गुनाह किया, तो उसने उसमें सुलह करा दी, उस पर कुछ गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तफसीर सूरह बकरह 22वां रुकू। यह आयत यहूदियों और ईसाइयों के बारे में नाजिल हुई, क्योंकि यहूदियों ने बैतुल मक़दिस के पूर्व को और ईसाइयों ने उसके पश्चिम को किबला बना रखा था, और हर पक्ष का ख्याल था कि सिर्फ इस किबले ही की तरफ मुंह करना काफी है। इस आयत में इसका रद्द फरमाया गया कि बैतुल मक़दिस का किबला होना स्थगित हो गया। मदारिक तफसीर करने वालों का एक कौल यह भी है कि यह संबोधन किताब वालों और ईमान वालों सबको आम है, और मानी ये है कि सिर्फ किबले की ओर मुंह कर लेना असल नेकी नहीं, जब तक अकीदे दुरुस्त न हो और दिल सच्ची मोहब्बत के साथ किबले के रब की तरफ मुतवज्जह न हो। इस आयत में नेकी के 6 तरीके इरशाद फरमाए: ईमान लाना, माल देना, नमाज कायम करना, ज़कात देना, एहद पूरा करना, सब्र करना। ईमान की तफसीर यह है कि एक अल्लाह ताला पर ईमान लाए कि वह जिंदा है, कायम रहने वाला है, इन वाला, हिकमत वाला, सुनने वाला, देखने वाला, देने वाला, कुदरत वाला, अजल से है, हमेशा के लिए है, एक है, उसका कोई शरीक नहीं। दूसरे कयामत पर ईमान लाए कि वह सच्चाई है, उसमें बंदों का हिसाब होगा, कर्मों का बदला दिया जाएगा, अल्लाह के प्रिय जन शफात करेंगे, सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादतमंदों या फरमानबरदारों को हौजे कौसर से जी भरकर पिलाएंगे, सिरात के पुल पर गुजर होगा, और उस रोज के सारे अहवाल जो कुरान में आए या सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए, सब सत्य हैं। तीसरे, फरिश्तों पर ईमान लाए कि वो अल्लाह के पैदा किए हुए और फरमानबरदार बंदे हैं, न मर्द हैं न औरत, उनकी तादाद अल्लाह ही जानता है। उनमें से 4 बहुत नजदीकी और बुजुर्गी वाले हैं, जिब्रील, मिकाईल, इस्राफील, इजराइल, अल्लाह की सलामती उन सब पर। चौथे, अल्लाह की किताबों पर ईमान लाना कि जो किताब अल्लाह ताला ने उतारी सच्ची है। उनमें 4 बड़ी किताबें हैं, तौरात हजरत मूसा पर, इंजील हजरत ईसा पर, जुबूर हजरत दाऊद पर, और कुरान हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व अलैहिम अजमईन पर नाजिल हुई, और 50 सहीफ हजरत शीस पर, 30 हजरत इदरीस पर, 10 हजरत आदम पर, और 10 हजरत इब्राहिम पर नाजिल हुए। 5वें, सारे नबियों पर ईमान लाना कि वो सब अल्लाह के भेजे हुए हैं और मासूम यानी गुनाहों से पाक हैं, उनकी सही तादाद अल्लाह ही जानता है। उनमें 313 रसूल हैं। नबीन बहुवचन पुल्लिंग में जिक्र फरमाना इशारा करता है कि नबी मर्द होते हैं, कोई औरत कभी नबी नहीं हुई, जैसा कि वमा अरसलना मिन कब्लिका इल्ला रिजालन, और हमने नहीं भेजे तुमसे पहले अपने रसूल मगर सिर्फ मर्द। सूरह नहल की 43वीं आयत से साबित है। ईमान मुजमल यह है, आमनतो बिल्लाहि व बिजमिए मा जा बिहिन नबियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी मैं अल्लाह पर ईमान लाया और उन तमाम बातों पर जो नबियों के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास से लाए। तफसीर अहमदी, ईमान के बाद कर्मों का और इस सिलसिले में माल देने का बयान फरमाया। इसके 6 उपयोग जिक्र किए। गर्दनें छुड़ाने से गुलामों का आजाद करना मुराद है। यह सब मुस्तहब तौर पर माल देने का बयान था। इस आयत से मालूम होता है कि सदका देना तंदुरुस्ती की हालत में ज्यादा पुण्य रखता है, इसके विपरीत की मरते वक्त जिंदगी से निराश होकर दे। हदीस शरीफ में है कि रिश्तेदार को सदका देने में 2 सवाब हैं, एक सदके का, दूसरा जरूरतमंद रिश्तेदार के साथ मेहरबानी का। नसाई शरीफ। यह आयत औस और खजरज के बारे में नाजिल हुई। उनमें से एक कबीला दूसरे से जनसंख्या में, दौलत और बुजुर्गी में ज्यादा था। उसने कसम खाई थी कि वह अपने गुलाम के बदले दूसरे कबीले के आजाद को और औरत के बदले मर्द को और एक के बदले 2 को कत्ल करेगा। जाहिलियत के जमाने में लोग इसी किस्म की बीमारी में फंसे थे। इस्लाम के काल में यह मामला सैयदे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश हुआ तो यह आयत उतरी और इंसाफ और बराबरी का हुक्म दिया और इस पर वो लोग राजी हुए।
कुरान करीम में खून का बदला लेने यानी किसास का मसला कई आयतों में बयान हुआ है। इस आयत में कसास और माफी दोनों के मसले हैं और अल्लाह ताला के इस एहसान का बयान है कि उसने अपने बंदों को बदला लेने और माफ कर देने की पूरी आजादी दी, चाहे बदला लें चाहे माफ कर दें। आयत के शुरू में किसास के वाजिब होने का बयान है। इससे जानबूझकर कत्ल करने वाले हर कातिल पर किसास का वजूब अर्थात अनिवार्यता साबित होती है, चाहे उसने आजाद को कत्ल किया हो या गुलाम को, मुसलमान को या काफिर को, मर्द को या औरत को, क्योंकि कत्ला जो कतील का बहुवचन है वह सबको शामिल है। हाँ, जिसको शरई दलील खास करे वह मखसूस हो जाएगा। अहकामुल कुरान। इस आयत में बताया गया है कि जो कत्ल करेगा वही कत्ल किया जाएगा, चाहे आजाद हो या गुलाम, मर्द हो या औरत। और जाहलों का यह तरीका जुल्म है जो उनमें रायज या प्रचलित था कि आजादों में लड़ाई होती तो वह एक के बदले दो को कत्ल करते, गुलामों में होती तो गुलाम के बजाय आजाद को मारते, औरतों में होती तो औरत के बदले मर्द का कत्ल करते थे और केवल कातिल के कत्ल पर चुप न बैठते। इसको मना फरमाया गया। मानी ये है कि जिस कातिल को मृतक के वली या वारिस कुछ माफ करें और उसके जिम्मे माल लाजिम किया जाए, उस पर मृतक के वारिस तकाजा करने में नरमी इख्तियार करें और कातिल खून का मुआविजा समझ बूझ के माहौल में अदा करे। तफसीरे अहमदी। मृतक के वारिस को इख्तियार है कि चाहे कातिल को बिना कुछ लिए दिए माफ कर दे या माल पर सुलह करे। अगर वह इस पर राजी न हो और खून का बदला खून ही चाहे तो किसास ही फर्ज रहेगा। जुमल। अगर मृतक के तमाम वारिस माफ कर दें तो कातिल पर कुछ लाजिम नहीं रहता। अगर माल पर सुलह करें तो किसास साकित शून्य हो जाता है और माल वाजिब होता है। तफसीरे अहमदी। मृतक के वली को कातिल का भाई फरमाने में इस पर दलालत है कि कत्ल अगरचे बड़ा गुनाह है मगर इससे ईमान का रिश्ता नहीं टूटता। इसमें खारजियों का रद है जो बड़े गुनाह करने वाले को काफिर कहते हैं, यानी जाहिलियत के तरीके के अनुसार जिसने कत्ल नहीं किया है उसे कत्ल करे या दियत कबूल करे और माफ करने के बाद कत्ल करे, क्योंकि किसास मुकर्रर होने से लोग कत्ल से दूर रहेंगे और जानें बचेंगी। यानी शरीयत के कानून के मुताबिक इंसाफ करे और 1/3 माल से ज्यादा की वसीयत न करे और मुहताजों पर मालदारों को प्राथमिकता न दें। इस्लाम की शुरुआत में यह वसीयत फर्ज थी। जब मीरास यानी विरासत के आदेश उतरे तब स्थगित की गई। अब गैर वारिस के लिए 1/3 से कम में वसीयत करना मुस्तहब है। शर्त यह है कि वारिस मुहताज न हो या तरका मिलने पर मुहताज न रहें, वरना तरका वसीयत से अफजल है। तफसीरे अहमद। चाहे वह व्यक्ति हो जिसके नाम वसीयत की गई हो, चाहे वली या सरपरस्त हो या गवाह, और वह तब्दीली वसीयत की लिखाई में करे या बंटवारे में या गवाही देने में, अगर वह वसीयत शरीयत के दायरे में है तो बदलने वाला गुनहगार होगा। और दूसरे, चाहे वह वसीयत करने वाला हो या वह जिसके नाम वसीयत की गई है, बरी हैं। मतलब यह है कि वारिस या वसी यानी वह जिसके नाम वसीयत की जाए, या इमाम या काजी जिसको भी वसीयत करने वाले की तरफ से ना इंसाफी या नाहक कार्रवाई का डर हो, वह अगर जिसके लिए वसीयत की गई या वारिसों में शरीयत के मुवाफिक सुलह करा दे तो गुनाह नहीं, क्योंकि उसने हक की हिमायत के लिए बातिल को बदला। एक कौल यह भी है कि मुराद वह शख्स है जो वसीयत के वक्त देखे कि वसीयत करने वाला सच्चाई से आगे जाता है और शरीयत के खिलाफ तरीका अपनाता है तो उसको रोक दे और हक व इंसाफ कर हुक्म करे। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जवजल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदका ए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे और ये आपके और मेरे, हम सभी के निजात का जरिया बने। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशाअल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।